Hello students, next video number 5, chapter number 3, human reproduction. Here it is 3.4 menstrual cycle. What is menstrual cycle? Menstrual cycle क्या होता है? सबसे पहला बेटा यहाँ पे सिनोनिम है, menstrual cycle बोलो और uterine cycle बोलो कॉमन. याद रखना डिस्टिंग्विश बिटवीन ओवेरियन साइकिल एंड यूट्राइन साइकिल दोनों अलग अलग कंसेप्ट्स हैं और दोनों कंसेप्ट्स जब भी बेटा पूछे गए हैं एक का लिटरेचर दूसरे में मिक्सअप हो जाता है. तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखने का है कि यूट्राइन साइकिल अकर इन द यूट्रस एंड यूट्राइन साइकिल और मेस्ट्रुअल साइकिल बोथ आर सिनोनिम्स एंड द सेकेंड वन इज ovarian cycle occur in the ovary that I have explained in the previous video. What is but a menstrual cycle समझना हो तो उसकी definition. What is menstrual cycle? The menstrual cycle is said to be the such event in which from the vaginal passage after the interval of 28 to 29 days with the blood flow occur from the vaginal passage, and with the blood flow the unfertilized egg secondary oocyte is thrown outside the body. It is considered as a menstrual cycle. The menstrual cycle is further mainly divided into various days pattern. It is day 1 to 5. It is said to be the menstrual phase in which the secretion from the blood occur in the female vaginal passage in the female body. It lasts for 3 to 5 days, in which the endometrium of the uterus will be cracks, and as a result the blood will be released. It is 1 to 5 menstrual phase. Next is day 6 to 14. It is said to be the proliferative phase. In the proliferative phase, or also it is said to be the follicular phase, the Golgi follicles and primary follicles are synthesized, secreted, and in this phase, the proliferation, the healing process occurs, in which the endometrium will be rebuilt and become glandular, become thicker. Then day 6 to 15 to 28 days, it is said to be the secretory phase, in which, in the secretory phase, the gonadotropin LH and FSH play significant role. Luteinizing hormones and FSH play significant role. And during that days, at the 14th day, ovulation occur. At the 23rd day, the endometrium will be thickest one that you have to see in the page number 50, in which where an important event occur. It is known as LH sludge, in which the female hormones they are maximum at the 14th day, and on that day, because of the secretions of estrogen is maximum and LH is maximum, the ovulation occur. Next, continuing the process during this period only, the corpus luteum continues to develop, and if implantation occur then, or implantation does not occur then, the progesterone hormone which is produced from the corpus luteum, it will be continuously secreted. But if implantation does not occur, in that case the process will be ceases up. It means the corpus luteum will be disintegrates and destroys. All the events are shown in a graphical representation in your textbook, page number 50. Next topic, 3.5, it is fertilization and implantation. Two concepts are there, fertilization and implantation. Here, just with the help of hand sketch diagram, I am trying to explain. Okay. Just quickly, I am drawing one diagram, that is human female reproductive system. Endometrium, here that is the vaginal passage.
First, I am trying to explain the term fertilization. Fertilization occur at here ampullary ischemic junction. Okay. At the end of the copulation, the male deposits the semen in the vaginal passage in the cervix, and from here the sperm cells is to migrate intra-uterus, reach to the ampullary ischemic junction, and approximately here 14th day in the ovarian cycle ovulation occur. At the fertilization time, बेटा एक चीज याद रखना, fertilization time in humans, the number of nuclei involved and what are the changes occur that I am trying to explain. बेटा इधर ध्यान से देखे तो what is involved? तो I can say the secondary oocyte is involved in the fertilization process. मैं बोलूँ यहाँ पे इसको secondary oocyte word बोलेंगे. Okay, and sperm cells. Okay, as the sperm head touches सीधा secondary oocyte को जो ना पहले सीधा से डाइजेस्ट करता हुआ जैसा sperm head यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करेगा, इमीडिएटली द सेकेंडरी oocyte, अब सेकेंडरी oocyte है ना, इट विल चेंजेस इट्स कंप्लीटेड सेकेंड मियोटिक डिवीजन एंड फॉर्म्स द सेकेंड पोलर बॉडी. मतलब पहला एक चीज समझ, फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं. तो सेकेंडरी oocyte मैं किसको बोलूंगा? सेकेंडरी oocyte. तो सेकेंडरी oocyte एक elongated gloal structure, मैच्योर ओवम बोल सकते हो. इट पजेस फर्स्ट पोलर बॉडी, यहाँ पे उसके फर्स्ट पोलर बॉडी होता है. ओके, अगर स्पर्म सेल नहीं है तो मेंस्ट्रुअल फोकस है तो उसको सीधे वेजिनल पैसेज से 28 डे साइकिल में से बाहर निकाल दिया जाएगा. लेकिन जैसा ये स्पर्म हेड इसको टच करता है, स्पर्म सेल्स का स्पर्म हेड जैसा इसको टच करता है, सेकेंडरी oocyte अपना मियोटिक्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है. ओके, और अब ये जो बनाएगा उसको फॉर्म्स फीमेल प्रोन्यूक्लियस एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, एंड देन मेल न्यूक्लियस, दैट इज स्पर्म सेल रिलीजेस मेल प्रोन्यूक्लियस इन द साइटोप्लाज्म. Important question you have to remember is the number of nucleus present at the fertilization time in humans. So there will be 4. First polar body, this is second polar body, it will take its position to here, that will be second polar body. Okay, and the fusion occur of male pronucleus which is carried from the sperm cell, sperm head, and female pronucleus fuses together and form a zygote. अब हम इसको बोलेंगे zygote. What is zygote? Zygote क्या है? तो first cell of multicellular organisms body, single cell structure of a multicellular organisms body. Here, most important thing you have to remember, short questions, कि at the fertilization time नंबर ऑफ न्यूक्लियर इन्वॉल्व में बेटा अभी 2-3 बार बोल चुका है. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको रिपीट भी कर रहा हूँ अपने ये पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मैं बायोलॉजिकल मैथ्स है ना वो टोटली अलग होता है. 1+1 = 2 हर बार नहीं होता. यहाँ पे तो 4 1+1+1+1 डेट इज इक्वल टू 1 है. सर ऐसे कैसे? तो फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी, मेल प्रोन्यूक्लियस, फीमेल प्रोन्यूक्लियस, तो 4 न्यूक्लियस हो गए. फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी, सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, हट्टा सामान की घटा करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे चिपका दिया जाएगा जो आगे जाके डिस्ट्रॉय होने वाले. फीमेल प्रोन्यूक्लियस और मेल प्रोन्यूक्लियस को फ्यूज होके हम बना देंगे ज़ायगोट. इससे पहले वही चीज था लेकिन अब बन गया ज़ायगोट. अब नेक्स्ट हमारी बुक के अंदर एक प्रिंटेड लिटरेचर है जो मैं नहीं समझा रहा हूं, पर्टिकुलरली द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, जो बाद में हम जेनेटिक्स के अंदर देखने वाले हैं. ये कि ये बात बेटा रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ और अब मैं सीधा के सीधा टर्म सिखाने का, समझाने का ट्राई कर रहा हूँ. दैट इज द इम्प्लांटेशन. व्हाट इज इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन कैसे होता है? तो फर्दर द ज़ायगोट विच इज फॉर्म इन एम्पुलर इस्टेमिक जंक्शन, यहाँ पे जैसा ज़ायगोट बन गया, नाउ ज़ायगोट विल स्टार्ट मूविंग. अब ये मेरा बेटा बातचीत एक जगह पे हुआ है गायनेक डॉक्टर के साथ,
कि यहाँ पे जो फिलोपियन ट्यूब के इंटर लाइनिंग्स होते हैं ना, यहाँ पे जो लाइनिंग्स होते हैं, यहाँ पे सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यूज प्रेजेंट होता है. द मूवमेंट ऑफ सिलेटेड एपिथेलियम फर्स्ट 14 days they are moving from uterus towards ampullary ischemic junction, and next 14 days the movement of ciliary epithelium is from ampullary ischemic junction towards the uterus. मतलब यहाँ पे वन वे और टू वे दोनों वे से मूवमेंट होता है. ऐसा क्यों? तो फर्स्ट 14th डे ये सिलियरी एक्शन हेल्प करता है स्पर्म सेल को फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पे पहुंचाने के लिए, और सेकेंड 14 days सेकेंड हाफ के अंदर ये इनको हेल्प करता है अगर जायगोट बन गया हो तो यहाँ से मूव करके यूट्रस की तरफ पहुंच सके. तो ये कंसेप्ट आपको मेमोराइज करने का और संभालने का, याद रखने का बेटा. अभी मैं यहाँ पे आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, दैट इज व्हाट इज इम्प्लांटेशन एंड वेयर इट अकर्स. तो बेसिकली जो इम्प्लांटेशन है ना, इम्प्लांटेशन वो इम्प्लांटेशन होना चाहिए प्रॉपर प्लेस ऑफ इम्प्लांटेशन, दैट इज एंडोमेट्रियम. ये एंडोमेट्रियम इधर इम्प्लांटेशन कंपल्सरी होना चाहिए. अगर इम्प्लांटेशन गलती से फिलोपियन ट्यूब में हो जाए तो इट इज said to be the wrong, that is wrong place. Intrafillopian implantation is said to be the lethal. अब ये प्रोसेस कैसे होगा स्टेप बाय स्टेप समझ कि एज द जायगोट कंटिन्यूज टू डेवलप, मतलब जो जायगोट है एम्पुलर इस्टेमिक जंक्शन में यहाँ पे एक सेल बन गया. ये जो जायगोट है ये जायगोट बना 14th डे पे, लेकिन जब इम्प्लांटेशन होने के लिए तैयार होगा तो ये ओवेरियन साइकिल का और मेंस्ट्रुअल साइकिल का होगा 23rd डे. मतलब 23rd डे में एंडोमेट्रियम थिकेस्ट होगा. जायगोट अंडरगो क्लेवेजेस 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 क्लेवेजेस. यहाँ से क्लेवेजेस होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज मोरूला. अब यहाँ पे अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो हमारे बुक में भी सेम पैटर्न से ही ड्रॉ किया हुआ है. ऐसा एक बॉल बनेगा जिसको मैं बोलूंगा दिस इज मोरूला. ओके, मोरूला इज जस्ट से टू बी द 8 to 16 सेल स्ट्रक्चर, दैट इज मोरूला. अब मोरूला विल कन्वर्ट इनटू ब्लास्टोसिस्ट. अब ये जो मोरूला है यहाँ पे बनेगा, यहाँ से यहाँ पे बन गया, मोरूला को कन्वर्ट होने का है ब्लास्टोसिस्ट में, ब्लास्टोसिस्ट. अब मैं ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम बेटा ड्रॉ करूं तो ब्लास्टोसिस्ट पोजेस आउटर मोस्ट अ सिंगल लेयर सेल लेयर, आउटर मोस्ट सिंगल सेल लेयर. जिस सेल लेयर को हम बोलेंगे ट्रोपोब्लास्ट. यहाँ पे सिंगल सेल लेयर है बेटा, क्योंकि मेरे को थोड़ा फटाफट डायग्राम ड्रॉ करने का है. दैट इज सिंगल लेयर, और ये आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलेंगे दैट इज ट्रोपोब्लास्ट. ओके, एंड एट वन साइड देयर विल बी प्रेजेंसी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ अ सेल. यहाँ पे कुछ सेल मास एक्यूमुलेटेड होगा जिसको हम बोलेंगे दिस इज इनर सेल मास. बराबर. अब ध्यान से देख, मैं कुछ टर्म्स रूटीन के यूज कर रहा हूं. रूटीन मतलब बुक में छापे हुए ना हो, लेकिन जिससे आपको एक टॉपिक अच्छे से समझ में ऐसे वर्ड्स यूज करूं. तो मोरूला जो है उसको आप कंपेयर कर सकते हो क्रिकेट बॉल. रिजिड होता है, रिजिड. मोरूला साइज एंड जायगोट साइज विल बी इक्वल्स that you have learned in 11th standard, that is the size of the zygote does not increases, number of cell increases, the size remain of the entire morula and the zygote will remain same, as the inside the fallopian tube the lumen will be common. Say simple same. यहाँ पे हर एक सेल की साइज घटता है, नंबर सेल के बढ़ेंगे, और ये पूरा स्ट्रक्चर एक क्रिएट होगा जिसको अपन बोलेंगे मोरूला. ये जिसको मैं बोलता हूँ क्रिकेट बॉल समझने के लिए. इट विल कन्वर्ट इनटू ब्लास्टोसिस्ट. व्हाट इज ब्लास्टोसिस्ट? ब्लास्टोसिस्ट क्या है? तो ब्लास्टोसिस्ट है ना, उसको मैं बोलता हूँ टेनिस बॉल. टेनिस बॉल मतलब एक बॉल होता है, उसको अपन ट्रांसफर सेक्शन ले,
मोरुला के अंदर जितने बॉल थे वो भरे हुए थे, और यहाँ पे क्या होता है, इसमें से कुछ सेल्स आउटर मोस्ट लेयर बना देंगे जिसको हम बोलेंगे ट्रोपोब्लास्ट, और अब बन जाएगा एक जगह पे कुछ सेल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे जिसको अपन बोलेंगे इनर सेल मास। एंड इफ दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्म इट इज रेडी फॉर इम्प्लांटेशन। अब ये जो है ना ब्लास्टोसिस्ट इज रेडी फॉर इम्प्लांटेशन। ब्लास्टोसिस्ट ये इम्प्लांट होता है, इम्प्लांट अगर मैं इसको यहाँ पे कलर ड्रॉ करके चेंज करके ड्रॉ करूँ तो इम्प्लांटेशन कहाँ पे हो सकता है, तो रूफ पे भी, इधर सब जगह पे इम्प्लांटेशन हो सकता है। इम्प्लांटेशन रेयरली फिलोपियन ट्यूब में भी होता है, लेकिन ये बाद में सर्जिकली रिमूव करवा दिया जाता है, और इट इज सेड टू बी द लीथल टूथ फॉर द लाइफ ऑफ द फीमेल। अब बेटा ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है, तो आउटर मोस्ट लेयर ट्रोपोब्लास्ट, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, स्टेट द फंक्शन ऑफ ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट डाइजेस्ट अवे फ्यू टिश्यूज ऑफ द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम के कुछ टिश्यूज वो डाइजेस्ट कर देता है, एंड एंडोमेट्रियम टिश्यूज पार्शियली एनवेलप्स एंड दे फॉर्म्स द इम्प्लांटेशन पॉसिबल। मतलब ये इनर सेल मास से ये पूरा कवर कर देगा, और अभी ये इम्प्लांटेशन कंप्लीटेड हो जाएगा। इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन कंप्लीटेड। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द इम्प्लांटेशन। Is pregnancy and embryo development, title number 3.6. Here just I have explained the implantation. अब implantation अगर हो गया तो हमारी बुक के अंदर ऐसे एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ, मैं वही का वही डायग्राम समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो मोरुला ब्लास्टुला बन गया। ब्लास्टुला से क्या होगा बेटा, तो इन्हें इनर सेल मास प्रोड्यूस होता है, और वही इनर सेल मास फिर आगे जाके ये पूरा स्ट्रक्चर बनाने वाला है। यहाँ पे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, functions of the trophoblast. So trophoblast is responsible for the formation of outermost membrane, implantation, amniotic fluids बनाने का काम करता है। तो एक बार बेटा इम्प्लांटेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन के पास बाद में क्या होगा, तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कोरियोनिक विली एंड दे आर अरेंज इन देयर इंटरडिजिटल से फैशन। अब इंटरडिजिटल फैशन पैटर्न क्या है वो मैं समझाने का ट्राई करूँ। एक तरफ मदर के जो विलीज है वो आएंगे, और सामने जो फिटस है, फिटस के जो ब्लड वेसल्स है वो इस तरह से अरेंज होंगे। बेटा देख, ध्यान से देखना, इंटरडिजिटेड पैटर्न, और इंटरडिजिटेड पैटर्न के अंदर यहाँ पे मतलब जो कोरियोनिक विलीज आर फॉर्म हियर, यहाँ पे कोरियोनिक विलीज बनेंगे, प्लेसेंटल विली बोले, कोरियोनिक विली सेम। From chorionic villi, two words, one word I am trying to explain, that is known as placenta, and another is umbilical cord. What is placenta? So placenta is a site where implantation occurs in uterus, it is known as placenta. And what is umbilical cord? तो umbilical cord is just said to be the lifeline of fetus. मतलब यहाँ पे बेटा मैं एक लेबल करूँ तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, that is umbilical cord. I can say umbilical cord is lifeline of fetus, or I can say bridge between placenta and fetus. कोई भी मटेरियल यहाँ पे कोरियोनिक विलीज इंटरडिजिटेड पैटर्न से मदर से ब्लड में फीटस के वहां पे प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड, और अम्बिलिकल कॉर्ड से फिर ये बेबी को बनेगा। और ये जो ह्यूमन बेबी दिख रहा है अभी स्टार्टिंग के स्टेज के अंदर पूरा मॉन्स्टर जैसा दिखता है, किसी एंगल से दिखता नहीं है कि ह्यूमन बेबी बनने वाला है। और इसके अंदर बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है नीट में पूछे जाए ऐसा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यॉर्क सैक इन यॉर्क सैक, इट इज व्हाई इट इज प्रेजेंट। जस्ट आई कैन से ह्यूमंस वी आर विविपेरस एनिमल, हम विविपेरस एनिमल्स हैं, तो विविपेरस एनिमल्स में तो यॉर्क सैक बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है, वी डिलीवर डायरेक्टली द बेबी इन द एनवायरमेंट। अब यॉर्क सैक, तो यॉर्क सैक का फिर फंक्शन क्या है, तो यॉर्क सैक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट टाइम WBC इन ह्यूमन बॉडी। ये एक एडिशनल 5 स्टार है बेटा, याद रखना। वन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हियर यू टू रिमेंबर, दैट इज द हॉर्मोन्स रिलीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। एज द फर्दर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी the various hormones are there, human chronic gonadotropin HCG, human placental lactogen HPL, estrogen, progesterone and relaxin will be secreted at the end phase of the pregnancy. Here concentrate progesterone and estrogen, these two hormones are secreted at two sides. वहाँ पे अपन ने इससे पहले भी बोला, मैंने खुद ने आपको ड्रॉ करके बताया था, कार्पस luteum is responsible for synthesis of progesterone. A part of that it is also secreted
बाय द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा भी कुछ प्रोपोर्शन के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोजेस्टेरोन? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कीपिंग ऑफ द प्रेगनेंसी। मतलब एंडोमेट्रियम एज इट इज रहेगा, एंडोमेट्रियम को वो टूटने तोड़ने नहीं देगा। तो ये एक मेन फंक्शन होता है प्रोजेस्टेरोन का। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनरी डेवलपमेंटल स्टेजेस, अब मैं बात करूं एम्ब्रियो डेवलपमेंट का, अपनी बुक में बेटा छपा हुआ पड़े इनर सेल मास इज कन्वर्टेड टू एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। सबसे पहले इनर सेल मास किस चिड़िया का नाम है वो तो समझ पहले बेटा। यहाँ पे एक मैं डायग्राम थोड़ा लोकेशन क्रिएट करने के लिए आपको समझाने के लिए मैंने स्केच किया। अब मैं इस स्ट्रक्चर को पूरा के पूरा मैं बड़ा ड्रॉ कर दूं और मैं बोलूं कि बेटा ये है ना वो ब्लास्टोसिस्ट है। अब ब्लास्टोसिस्ट आउटर मोस्ट लेयर जो है उसको अपन बोलेंगे ट्रोपोब्लास्ट। अब सेम टुवर्ड्स द इम्प्लांटेशन टाइम इनर सेल मास इज रिस्पॉन्सिबल, एक जगह एक्यूमुलेटेड होगा। थंब रूल है कि एट द इम्प्लांटेशन टाइम द इनर सेल मास मस्ट हैव्स टू प्रोजेक्टेड टुवर्ड एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की तरफ ही प्रोजेक्टेड होना चाहिए। अगर रूफ इम्प्लांटेशन है तो ये स्ट्रक्चर में कोई गोल घुमा देना पड़े, ऊपर कर देना पड़े, मतलब अगर सुपीरियर इम्प्लांटेशन और लेटरल साइड में ही आएगा। अब इनर सेल मास, अब इसके अंदर क्या होता है, व्हाट विल हैपन, दैट इज ट्रोपोब्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इनर सेल मास, मतलब अंदर की तरफ कुछ इन्वेजिनेशन होगा। और यहाँ पे हमको 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, 3 जर्मिनल लेयर्स देखने को मिलेंगे जो 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। और वहां से ऑर्गेनोजेनेसिस होगा और आगे के जो ऑर्गन्स है ना वो पूरा बन के इधर से एक ह्यूमन बॉडी जो डायग्राम ड्रॉ किया वो बनने वाला है। बेटा जिस तरह बुक में प्रिंटेड है मैं वही मेथड से पढ़ाने का ट्राई कर रहा हूँ। The entire embryo developmental stages can be considered as the human gestation period is 9 months। 9 महीने का हम gestation period बोलते हैं। कई बार मम्मी हमको बिगड़ती कह रहा 9 महीने मैंने तेरे को मेरी कोख में संभाला है। अब 9 महीने का जो gestation period है ना उसको हम बोले तो हमने 3 + 6 months के अंदर बाइफर्केटेड किया हुआ है। 3 जो है उसको अपन बोलते हैं embryo development stages, embryo developmental stages। At the end of embryo the fetus is formed, तो वहां पे fetus developmental stages बोलेंगे। अब ये जो पूरा कंसेप्ट है उसको बेटा मैं एक और एंगल से समझाऊं, एक एग्जांपल देके कि मान लें एट द पिक ऑफ द प्रेगनेंसी एक फीमेल है, ह्यूमन फीमेल, उसका डिलीवरी से पहले वो लेडी का वेट 60 किलोग्राम है। अगर जो ह्यूमन बेबी जो पैदा हुआ उसका वजन अपन पकड़े तो 3 kg है, तो वो जो फीमेल है उनका वेट आफ्टर डिलीवरी लेंगे तो कितना आएगा, ये मैं एक एग्जांपल से बताने का ट्राई कर रहा हूँ। तो आप में से सीधे कई स्टूडेंट जवाब दे देंगे कि सर उनका वेट है ना 57 है। मैं बोलूँगा ना 57 रॉन्ग आंसर है। क्यों रॉन्ग आंसर है? क्योंकि -2 और यूँ बोलूँ तो 55 आएगा। ये 3 kg का ह्यूमन बेबी बराबर, और ये 2 kg क्या, तो एक चीज समझना, 2 kg में एमनियोटिक फ्लूइड, प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, ओके, ऐसा सब स्ट्रक्चर्स आता है। कुछ अंडरस्टैंडिंग ना हो तो बेटा एक एग्जांपल बताऊं, सुनना। अगर मैं बोलूं कि आप बाजार में डेयरी मिल्क चॉकलेट खाओ, सिल्क 70 रुपीज की, तो आप हकीकत में 70 रुपीज की चॉकलेट खाते हो? नहीं, चॉकलेट 70 रुपीज की नहीं खाते, क्योंकि हम चॉकलेट कितने की खाते हैं? 65 रुपए की। 5 रुपए का तो रैपर होता है ना। तो यहाँ पे अगर ह्यूमन बॉडी बनाने का एक चीज दिमाग में एम्बोस करना, कई बार सॉरी ये मेरा पेट फेवरेट वर्ड है, एम्बोस कर देना मतलब याद रख लेने का मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक जो जायगोट होता है, सिंगल सेल जायगोट, वो जायगोट में से अकेला ह्यूमन बॉडी नहीं बनता, लेकिन वो ह्यूमन बॉडी को सस्टेन करने के लिए जितनी चीजें चाहिए जिंदा रखने के लिए, जैसे प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, एमनियोटिक फ्लूइड, सराउंडिंग एमनियोटिक लेयर्स, सारी के सारी चीजें वो सिंगल सेल जायगोट में से ही बनने वाला है। ओके, तो बाकी का जो 2 किलो जो अपन बोलते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए कचरा, सॉरी आई एम यूजिंग अगेन दिस वर्ड, ह्यूमंस के लिए कचरा,
और वो जो कचरा होगा ना, सॉरी, वो कुत्ते खाते हैं इंडिया के अंदर, लिटरली कुत्ते खाते हैं, क्योंकि जितनी हॉस्पिटल्स होती है ना उसमें प्रॉपर डिस्पोजेबल तो है नहीं, ओके, और वो कचरे के डब्बे में भर दिया जाता है, हमको पता ही नहीं होता, और उसको फेंक दिया जाता है, और वहाँ पे जो ऑर्गन या अम्बिलिकल कॉर्ड ना, प्लेसेंटा, ये सब चीज़ें ना वो ये वेस्ट मटेरियल के तौर पे फेंक दिया जाता है. इन द एंटायर एम्ब्रियो डेवलपमेंटल स्टोरी, I can say in the first month the heart is formed. In the second month limbs and digits, limbs and digits are formed. First trimeres, I can say the first trimeres, most important one. इससे पहले भी मैंने एक वर्ड बोला था, आपको याद है तो बेटा, 3 + 6 that is equal to 9. First 3 months, at the end of 3 months and whole human body is produced. ये सिचुएशन में एक ह्यूमन बॉडी के जितने ऑर्गन्स होते हैं, हाथ, नाक, कान, मुंह, ऑर्गन, सब के सब बन जाते हैं. साइज खाली छोटा होता है. दैट इज सेड टू बी द होल ह्यूमन बॉडी इज प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ टाइम. दैट इज फर्स्ट ट्राइमेरस. सेकेंड ट्राइमेरस in 24 weeks the body will covered with hairs, eyelids, separates eyelashes बन जाते हैं, and at the end of the 9 months the human baby is ready for the delivery. This is the last topic of this chapter, that is 3.7, parturition and lactation. When I am trying to explain what is parturition and lactation, that is also known as childbirth, that is parturition. At the end of 9 months, the baby is ready for delivery. अब बेटा स्टेप बाय स्टेप समझते जा, सुनते जा. ये जो भी मैं टॉपिक्स पढ़ रहा हूँ, कि जो भी मेरे शागिर्द लोग हैं, सबसे पहला थैंक यू यार. लगभग 1-1.5-2 महीने हो गए और 182 लगभग सब्सक्राइबर हो गए. थैंक यू यार, हार्डली थैंक यू. 100 से ऊपर बच्चे देख रहे हैं, बंदे देख रहे हैं, टीचर्स हैं, वगैरह वगैरह वगैरह. मैं जो भी बोर्ड पे लिख रहा हूँ, वो 5 स्टार टर्म्स है, और वही चीज टर्म स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ. मैथडोलॉजी के अंदर जो मैंने डायग्राम स्केच किया, जो क्वेश्चंस बीच बीच में बोलता गया, आप फास्ट पॉज करके, रिवाइंड करके, वगैरह वगैरह सुनते जाना. और जो बोर्ड पे लिखे जो टर्म्स है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, उसको बेटा संभालने का. तो ये पूरा के पूरा टॉपिक मैं कुछ ही वर्ड्स के अंदर कंप्लीट कर रहा हूँ. जैसा मैं बोलूँ, मेरे चैनल का टाइटल है बायोलॉजी, बैटल ऑफ वर्ड्स, वैसा ही कंसेप्ट कुछ यहाँ पे रहने वाला है. तो पैचुरेशन और ऑल्सो इट इज नोन एज चाइल्ड बर्थ. दिस इज सच अ प्रोसेस इन विच एट द एंड ऑफ द 9 months द ह्यूमन बेबी इज रेडी फॉर द डिलीवरी, मीन्स नेचर के अंदर डिलीवर होने के लिए तैयार. 9 months is most required, जो अपन पहले बातचीत कर चुके. The strong contraction and relaxation is required in the myometrium, epimetrium, myometrium, endometrium, and as a result the human baby is exposed, that is removes outside the uterus. It is known as exclusion, most important term है. It is also called the neuroendocrine mechanism, and it is also referred as a fetal ejection reflex, in which two majority hormone, oxytocin and relaxin, they play a significant role on the myometrium, and as a result the myometrium undergo strong vigorous contraction and relaxation, and as a result the baby is removed from the uterus, and the entire process is known as exclusion. Next term start, it is lactation. आपके बुक के अंदर भी 2 पैराग्राफ हैं, दोनों पैराग्राफ को इस तरह से बाइफरकेट किया गया है, और वो दोनों को लिखा गया है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन इस पैटर्न से. अब बेटा लैक्टेशन क्या है? तो आफ्टर द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, द ब्रेस्ट, द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड is preparing milk under the influence of specialized hormone that is known as prolactin. ये अपन ने 11th में देखा था, प्रोलैक्टिन. अब जो प्रोलैक्टिन है, वो प्रोलैक्टिन क्या काम करता है? तो इट वर्क्स इन्फ्लुएंस ऑन द मेमोरी ग्लैंड, द डिफरेंशिएशन अकर, and in the mammary gland, whatever the structure we have learned in the same, it will start the synthesizing the milk. After the delivery of child, the first milk which is secreted from the mammary gland, it is just said to be the little bit yellowish fluid. It is known as colostrum, and this colostrum possesses plenty of antibodies
and it is just said to be the most important immunity point of view is most required, तो that is colostrum. एक important word है बेटा, ये चीजें स्टेप बाय स्टेप समझते जाना, अंडरस्टैंड करते जाना। यहाँ पे मैं बोलूँ कि पूरा के पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। आप अच्छे से लर्न करो, अच्छा स्कोर करो और बढ़ते रहो। आप में से कोई भी स्टूडेंट्स हो, टीचर हो, कोई भी अगर कुछ सजेशन देना चाहे, मोस्ट वेलकम, हार्टली वेलकम। आप प्रॉपरली मेरे को सजेशंस देना चैट बॉक्स के अंदर, लिटरली लिखो कि ये आपकी चीज़ हमको समझ में नहीं आया, वॉट एवर, तो मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अपडेट होता रहूँगा। हार्टली थैंक यू फॉर विजुअलाइजिंग दिस। यहाँ पे बेटा ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीरीज, नेक्स्ट मैं वीडियोस शॉर्ट टाइम में कंटिन्यूसली अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू।